Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Students, today in this class, we are going to learn about modal auxiliary verbs. Students, we have learnt about verbs. What are verbs? हमें सब पता है कि verbs जो हैं, they are actioning verbs, actioning words. वो ऐसे words होते हैं जो किसी action को show करते हैं. We have learnt about them in detail. कुछ कॉमन वर्ब्स में बात मैं लिखूं यहाँ पे, तो जैसे मैं कहता हूं कि कम, गो, स्पीक. सो दीज आर द वर्ब्स, एक्शनिंग वर्ड्स हैं. ये एक्शन को शो करते हैं, वर्ब को शो करते हैं. इन्हीं को हम कहते हैं मेन वर्ब्स. वी कॉल देम मेन वर्ब्स बिकॉज दे हैव फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एनजी फॉर्म. कम, सेकेंड फॉर्म केम, इसका past participle will be come and its present participle means ing form will be coming. So these all have 3 or 4 forms. Other than these, apart from these verbs, we have some more verbs which do the action of a verb, लेकिन completely उनको हम verb नहीं कहते. इतना complete action उनका नहीं होता है. उनको हम कहते हैं helping verb because ये verbs जो है they are needed to convey some message, but their message cannot be conveyed without the use of helping verb. Auxiliary verbs. Auxiliary means helping means जो help करे. चलिए देखते हैं. अगर मैं यहां लिखता हूं कि he going, अब ये he going है, ये मीनिंग तो कंप्लीट नहीं हुआ. This is the main verb, this is subject. So meaning is not complete. He going, मैं यहां लिख सकता हूं is, मैं यहां लिख सकता हूं was, मैं यहां लिख सकता हूं will and be. So हर एस्पेक्ट में जो मीनिंग है that would change. So he going has no meaning. किसके बगैर इसका मीनिंग नहीं है. Without these words. And these words are called helping verbs. These verbs help the main verbs to convey the complete meaning. And this is what we have to learn today. Helping verbs की, when we talk about helping verbs, you see there are mainly 2 types of helping verbs. एक हम पढ़ चुके हैं already, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में. एक तो ये होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी जो मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, और एक और होती हैं जिसे आप कहते हो बी का फॉर्म, जिसे आप पढ़ चुके हो इज एंड एम एंड आर, वाज, वर. हम पढ़ चुके हैं इनको. दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स. अदर देन दीज, ये पास्ट प्रेजेंट की बात करता है, ये पास्ट की बात करता है. Other than this we have some more and we have modal auxiliary verbs. ये modal auxiliary verbs भी हमें कुछ ना कुछ बताती हैं. उसी सेंटेंस, अगर मैं यहाँ लिखता हूं कि he play और यहाँ गैप है बीच में, तो मैं यहाँ पे should लिख सकता हूं, can लिख सकता हूं, may लिख सकता हूं, and every time the meaning will change. So to convey the complete meaning of a main verb, we require a modal auxiliary or a helping verb. Today we are going to study modal auxiliary verbs, mainly should, can, could, may, might, will and would. Students, these are very easy, very simple. We have been learning them for a long time. We have to use them. Today again we will study. In our junior classes we studied all these modal auxiliaries. Today again we are going to study, and I hope this time if you pay your full attention, you should be assured that you won't have to bother for these again in whole of your life. Never ever you will face any problem in modal auxiliary verbs. So let us start with the first one, that is should. एक चीज हमें याद रखनी है आगे बढ़ने से पहले, वो क्या है कि किसी भी मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद में हम यूज करते हैं वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म.
वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की जो होती है फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं और फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है इस चीज का। अब देखते हैं, सबसे पहले शुड पे आ जाते हैं कि शुड क्या होता है, कहां यूज करते हैं। देखिए, डोंट गो आफ्टर द ट्रांसलेशन। सम ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि शुड आ गया है, इसका मतलब हम यूज करते हैं चाहिए, शुड का मतलब चाहिए होता है। नो ट्रांसलेशन। हमें याद रखना है कि जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, वी विल यूज शुड। एडवाइस देने के लिए आपको चाहिए शब्द का यूज करना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोंट गो आफ्टर द ट्रांसलेशन। डोंट फाइंड आउट सच वर्ड्स, चाहिए, करता है, ता है, चुका है, चुके हैं। इट यूज टू बी अ वेरी ओल्ड मेथड, नाउ इट हैज नो प्लेस। यू मस्ट अंडरस्टैंड, शुड कहां यूज होगा, जहां पे हम सलाह दे रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं। सिंपल यूज है इसका, इसका बड़ा ही सिंपल यूज है। देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स अ पर्सन हु डज एनी एक्शन। ये कौन है, डूअर है। इसके बाद में क्या यूज किया हमने, मॉडल ऑक्सिलरी, यानी यूज किया हमने शुड। एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। किसी को भी सलाह देने, इवन यू कैन प्रैक्टिस इट by speaking different sentences. You can improve your spoken English. स्पीकिंग संभाल सकते हो। जैसे शुड कहता हूं कि आपको खेलना चाहिए, मैंने सलाह दी है आपको खेलना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि यू शुड, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्ले इज प्ले, यू शुड प्ले। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। बात यू की नहीं है, किसी की भी हो सकती है, सब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है। उसे जाना चाहिए, he should go to school। उसे लिखना चाहिए, he should write। नेगेटिव बनाना बड़ा आसान होता है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसी को we will add not to this। इसी को हमने लिखा सब्जेक्ट, एंड देन वी हैव रिटन हियर शुड एंड नॉट, एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इट्स वेरी सिंपल, शुड नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म। आपको दौड़ना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट रन। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। देखो कितना आसान है, बोलना भी और लिखना भी, यू शुड नॉट। आप इससे इंटरोगेटिव भी बना सकते हो। ये शुड यहां आ जाएगा इन द बिगिनिंग, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, एंड देन देयर इज सब्जेक्ट एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया है आपका। देखो, इट्स वेरी सिंपल। खुद सलाह मांग लेते हैं हम लोग। जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं चलूं आपके साथ, मुझे रुकना चाहिए, शुड आई स्टे हियर। मैं बोलूंगा शुड आई स्टे हियर। क्या मुझे बीच में बोलना चाहिए, शुड आई स्पीक इन बिटवीन। क्या मुझे लिखना चाहिए, शुड आई राइट। क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मैं जाऊं, शुड आई गो। देखो, मैंने कहा कि क्या मैं जाऊं, चाहिए यूज नहीं किया है, तो एक मैं एक्चुअली आई एम आस्किंग फॉर एक्चुअली एडवाइस, तो सिंपली शुड कैन बी यूज्ड हियर। तो शुड का यूज है, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म फॉर एडवाइजिंग एनीबॉडी। इट्स अ सिंपल यूज। आपको कोई काम करना चाहिए, मीन्स यू शुड डू इट। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको लिखना चाहिए, यू शुड राइट। सो दिस वाज द यूज ऑफ शुड। एक और यूज होता है शुड का, एक और यूज होता है, क्योंकि जो शैल होता है उसको इन पास्ट फॉर्म हम शुड कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? शैल को पास्ट फॉर्म में शुड कहते हैं। इन पास्ट शैल विल बिकम शुड। विल क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। सो विल डिस्कस अबाउट लेटर ऑन। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की, नरेशन की, जैसे ही सेड आई विल, इसको शैल, आई शैल गो टुमारो। इनडायरेक्ट एक सेंटेंस है। तो ही सेड, जब इसको चेंज करेंगे तो ये आई किस में चेंज हो जाएगा, आई विल चेंज इनटू ही।
ही शैल को वैसे तो हमें शुड में चेंज करना चाहिए लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ही के साथ में तो विल आता है, यहां पे ही वुड गो टुमारो। लेकिन अगर आई और वी होगा तो वहां पे हम शैल को शुड में कन्वर्ट कर देंगे। We will convert shall into should. Getting my point? मैं यूज करके बताता हूं एक और सेंटेंस यहां पे। I said I shall go tomorrow। चेंज कर देते हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। I said that I, now this shall should be in past, जैसे will becomes past तो मैं इसको I यहां पे should लिखूंगा, I should go tomorrow। तो इस यूज को समझना है, shall becomes should in past। अदरवाइज द मेन यूज ऑफ shall है जो हम यूज करते हैं shall को अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो हम इसको यूज करते हैं किसके लिए? एडवाइस के लिए, जो कि बड़ा सिंपल सा यूज मैंने आपको बताया है। नाउ लेट अस कम टू अनदर, दैट इज कैन। कैन की बात करते हैं। कैन कहां होगा भाई? कैन यूज होगा अबिलिटी के लिए, है ना। आप में एबिलिटी है, सत्ता के पीछे नहीं जाना है। एबिलिटी है आपके अंदर किसी भी काम को करने की तो आप यूज कर सकते हैं कैन। आप कहते हैं कि मैं खेल सकता हूं, स्ट्रक्चर क्या होगा? वही सिंपल स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में यानी कैन होगा एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मैं कोई काम कर सकता हूं, कोई काम मेरे बस का है, मैं लड़ सकता हूं तो मैं कहूंगा आई कैन फाइट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लड़ूंगा, आई एम जस्ट टेलिंग माई एबिलिटी, आई एम एक्सप्रेसिंग माई एबिलिटी, आई कैन फाइट। ये सवाल मैं सॉल्व कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे? इसको वी विल मेक इट नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल है, कैन एंड नॉट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कैन और नॉट को एक साथ लिखना है, याद रखो। कैन और नॉट ऐसे नहीं लिखना है, दिस इज रॉन्ग। यू टेक केयर ऑफ दिस कि सब्जेक्ट कैनॉट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म। भाई मैं नहीं लड़ सकता, आई कैन नॉट फाइट। भाई मैं दौड़ नहीं सकता, आई कैन नॉट रन। मेरे बस का नहीं है गाना गाना, आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग एक्चुअली। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हम यूज करते हैं नॉट, और अगर हमें इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो दिस कैन विल बी इन द बिगिनिंग एंड देन देयर वुड बी सब्जेक्ट एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर तो वही है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। क्या तुम दौड़ सकते हो? कैन यू रन? क्या आप खेल सकते हो? कैन यू प्ले? क्या आप मेरी बात सुन सकते हो? कैन यू लिसन टू मी? क्या आप जीत सकते हो? कैन यू विन? जीत सकता हूं, आई कैन विन। वो जीत सकता है, ही कैन विन। हम जीत सकते हैं, वी कैन विन। सो कोई भी सब्जेक्ट हो हम उसके साथ में कैन यूज करेंगे एंड वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ। गेटिंग माय पॉइंट? तो कैन इज यूज्ड फॉर एबिलिटी। और कैन का क्या यूज हो सकता है भाई? बिल्कुल हो सकता है कैन का। कैन का यूज हो सकता है परमिशन के लिए। आपको परमिशन चाहिए होती है, क्या परमिशन मांगते हैं? हम कुछ लोगों को जरूरत नहीं होती है, वो शायद परमिशन नहीं मांगते हैं, लेकिन जिनको परमिशन की जरूरत हो, जो ये समझते हैं कि इट इज नेसेसरी, वो जरूर कैन का यूज करते हैं। और यूज करते हैं जैसे हम क्लास में अंदर आने से पहले टीचर को कहते हैं कि टीचर कैन आई कम इन? कैन आई कम इन? यूज तो वही है, स्ट्रक्चर तो वही है, सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म, कैन एंड फर्स्ट फॉर्म। क्या मैं दौड़ सकता हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं? कैन आई डू इट? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? कैन आई हेल्प यू? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं? कैन यू प्लीज क्लोज द डोर? सो कैन का यूज किया है परमिशन के लिए। देयर इज अनदर यूज ऑफ कैन। अनदर यूज ऑफ कैन क्या है? ये जो कैन है इट इज यूज फॉर, यहां पे एबिलिटी के लिए, यहां पे परमिशन के लिए हमने यूज किया है।
sometimes when we talk another person's मतलब a person should have some ability, तब भी हम जो ना कैन का यूज कर देते हैं. जैसे हम कहते हैं कि भाई हाँ ये आदमी जीत सकता है, तो हम कहते हैं कि he can win. We think this person had ability, that's why we can use. So can का हम यूज यहाँ पे करेंगे. So ability and permission, mainly for two things we use can. Now could, can से आगे क्या आता है? could आता है. could क्या है? ये पहली चीज तो है past of can. इस चीज को समझो, past of can कैसे है? जो काम can का है वही काम could का है, लेकिन कब? past में. You must understand what can does the same thing is done by could, but that is done in past. ये भी ability के लिए तो ये भी ability के लिए. ठीक है, देखते हैं इसको. एक सेंटेंस देखते हैं भाई. सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट एंड कुड एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म. कोई काम आप कर सकते हो मीन्स इट इज प्रेजेंट. कोई काम आप कर सकते थे यानी कि पास्ट है. कोई काम करने की एबिलिटी आप में अभी है तो कैन यूज होगा, और किसी काम को करने की एबिलिटी आप में पास्ट में थी तो कुड का यूज होगा. मैं दौड़ सकता था, अगर मैं ये कहूं कि मैं दौड़ सकता था तो क्या कहूंगा? आई कुड रन. मैं जीत सकता था, आई कुड विन. यहां पे हम ये नहीं बता रहे कि मैं जीता कि नहीं जीता. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी ओनली. मैं उसकी मदद कर सकता था, ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने की या नहीं की. आई एम सिंपली सेइंग कि आई कुड हेल्प हिम. आई कुड हेल्प हिम यानी फर्स्ट फॉर्म कुड एंड देन फर्स्ट फॉर्म यानी एबिलिटी इन पास्ट. भाई जब मैं पांचवी क्लास में था तो मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था. तो ये तो कब की बात हो गई? पास्ट की बात हो गई. जब मैं 5वीं क्लास में था तो मैं कहूंगा व्हेन आई वाज इन 5th क्लास. आपको ध्यान ये रखना है कि यहां हमने वाज का यूज किया है बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. कि जब मैं 5वीं क्लास में था, व्हेन आई वाज इन 5th, तो जब ये पास्ट है तो इससे आगे का जो हिस्सा है, हाउ कैन दैट बी इन प्रेजेंट? वो प्रेजेंट नहीं हो सकता. तो मैं यहां लिखूंगा आई कुड रन 5 किलोमीटर्स. 5वीं में था, 5 किलोमीटर दौड़ सकता था. Getting my point? So this is use of can, ability, but ability in past. दूसरा could का एक और यूज है, that is again जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी को या परमिशन मांगते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, है ना. हम कहते हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू प्लीज हेल्प मी? Could you help me? Could you close the door? Could you do this? So polite request के लिए इसी यहीं पे can भी यूज होता है. Can I come in? या could I come in? Could I help you? Could I talk to you for 2 minutes? We are taking permission also and we are talking very politely to a person. So we can use could here. This we have to take care. So could के कितने भी सेंटेंस बनाए आप कि भाई could you please open the window? This is a request, a polite request. And if you talk about the ability, then you can use could. कि I could do this in past. I could sing well when I was a kid, but now I am not able to sing. I talked about ability of past. It means I used could. So could is ability in past. इसलिए ये past of कैन है. जो काम कैन करता है वही काम कुड करता है. एबिलिटी के मामले में ये प्रेजेंट के लिए करता है काम, ये पास्ट के लिए करता है. लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस मूव टू अनदर मॉडल ऑक्सिलरी. नाउ नेक्स्ट वी हैव मे. बड़ा कॉमन सा यूज है, आपने सुना हुआ है, आप इसको रोज यूज करते हैं. सबसे पहला इसका यूज देखते हैं, वो क्या है? वो होता है पॉसिबिलिटी. जब आपको कोई चीज पॉसिबल लगे तो स्ट्रक्चर कैसे यूज होगा, इसका यूज कैसे करेंगे? अरे भाई वही यूज है, सब्जेक्ट होगा यानी डूअर होगा, फिर ये वर्ब होगी मे होगा, एंड देन देयर विल बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म. क्लियर? यू मे डू इट.
मैं कहता हूं कि बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, बारिश हो सकती है, तो मैं कहूंगा इट मे रेन। देखो आपने, मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्ट यूज किया है, ये मे यूज कर दिया और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर दिया, इट मे रेन। वो जीत सकता है, ही मे विन। क्या होगा, वो जीत सकता है, ही मे विन, मे का यूज हो गया। वो दौड़ सकता है, एबिलिटी की बात नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है ना। इंडिया में विन, ही मे विन। वो पास हो सकता है, ही मे पास, ही भी पास हो जाएगा का मतलब ये हम ही कहना चाहते हैं कि उसके पास होने की उम्मीद है, तो ही मे पास। बड़ा सिंपल सा तरीका है मे, एनी पॉसिबिलिटी। एक और यूज है मे का जो कि आप यूज करते हैं रोज। बिफोर एंटरिंग क्लास द स्टूडेंट्स डेली यूज इट। व्हेन वी हैव टू एंटर द ऑफिस ऑफ अनदर पर्सन वी यूज दिस वर्ड मे। किसके लिए? फॉर आस्किंग परमिशन, फॉर आस्किंग परमिशन, आस्किंग परमिशन के लिए यूज करते हैं, है ना। सबसे पहला वर्ड फ्रेज सॉरी सेंटेंस ले लेते हैं जो आप रोज बोलते हो, मे आई कम इन सर, है ना। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउट। अब देखो हमने तीन चीजें पढ़ी हैं परमिशन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। हमने कैन पढ़ा, हमने कुड पढ़ा, एंड देन नाउ वी आर रीडिंग मे। तो डिफरेंस क्या हो सकता है? बट डिफरेंस कुछ नहीं है, थोड़ा सा इम्पर्सनल सा है। व्हेन वी टॉक अबाउट, व्हेन वी टॉक इन अ कैजुअल वे यू विल यूज कैन। ये इससे थोड़ा सा बेटर है, कुड यू कैन यूज व्हाइल टॉकिंग, एंड दिस इज द फॉर्मल वन, द स्टैंडर्ड वन, फॉर्मल वन। सबसे बेस्ट हम किसको कहेंगे? मे को कहेंगे। बाकी आप किसी को भी यूज करते हैं, वही किसी को यूज कर, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। मे यूज करें, कुड यूज करें और कैन का यूज करें। देयर इज वन मोर यूज ऑफ मे, एक यूज और है मे का, जब आप किसी के लिए विश करते हैं। विश करते हैं किसी के लिए, बर्थडे विश करते हैं, किसी की मैरिज एनिवर्सरी पे आप विश करते हैं, यू विश योर फ्रेंड्स। तो आप क्या करेंगे, जब आप कहते हैं ना किसी को कि मे यू स्टे ब्लेस्ड, ठीक है, आपने जब ये कहा मे यू स्टे ब्लेस्ड, आपने उसको क्या किया है, उस बंदे को आपने दुआ दी है, विश की है उसके लिए, है ना। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से हम मे का यूज करते हैं विश के लिए, मे का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, मे का यूज करते हैं परमिशन के लिए। फिर से एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे, कल वो आएगा, आएगा तो मैं विल का यूज कर देता हूं क्योंकि वो आएगा, ही विल कम। शायद वो आए, शायद वो आए तो ही मे कम, यानी ही मे कम, मे लगा दिया मैंने। परमिशन के लिए हम यूज करते हैं कि भाई मैं आपके साथ आ सकता हूं, मे आई कम विद यू, मे आई ज्वाइन यू, मे आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes। Wish, may you live long, may you stay blessed, may God help you, may God keep you always happy. So this way you can use may. So mainly 3 uses of may. Now next is might. Might. पहली चीज might is past of may, है ना। जो काम मे का है वही माइट का है पास्ट में। क्लियर? माइट किस लिए यूज होगा? पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा, लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा। जितनी पॉसिबिलिटी के लिए मे यूज होता है उससे कम पॉसिबिलिटी हो जाए तो माइट यूज कर देंगे। भाई वो आएगा, he will come, वो शायद वो आएगा, मैं कहता हूं कि वो आएगा शायद, तो he may come, he may come, पॉसिबिलिटीज है। बारिश हो सकती है, आपको लगता है बारिश हो सकती है, बादल है, मौसम ऐसा ही है, तो यू कैन से इट मे रेन। लेकिन आपको लगे नहीं बहुत कम चांसेस हैं, तो आप कह सकते हैं इट माइट रेन। क्या कह सकते हैं? इट माइट रेन।
स्ट्रक्चर क्या होगा माइट के यूज करने का? सेम स्ट्रक्चर है भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट कोई तो होगा जो काम करेगा, डूअर, सब्जेक्ट, somebody will be there, so subject and then might and then verb first form. सबके साथ एक ही स्ट्रक्चर है, should first form, can first form, could first form, may first form, might first form, subject plus might first form. वो जीत सकता है, ही जीत सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आप एबिलिटी की बात कर रहे हो तो आप कहोगे ही कैन विन। आपको लगता है कि उसमें पॉसिबिलिटी है जीत सकता है तो ही मे विन। आपको लगता है पॉसिबिलिटी कम है शायद वो जीत जाए तो हम कहेंगे ही माइट विन। शायद ही रेन हो, इट माइट रेन। सो इट इज यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी। ये किसके लिए यूज हुआ है? पॉसिबिलिटी के लिए यूज हुआ। भाई वो तो शायद ही पास हो, पढ़ता तो है नहीं भाई, पेपर देने गया है, हो सकता है पास हो जाए लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, तो मैं कहूंगा ही माइट पास, ही माइट पास। सो इट्स वेरी सिंपल, ही सब्जेक्ट माइट एंड देन फर्स्ट फॉर्म। एक चीज याद रखो, किसी भी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए कॉमनली व्हेन वी टॉक इन द प्रेजेंट सेंस तो हम उसमें यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म मैक्सिमम। उनके साथ में हैव भी यूज सकता है, थर्ड फॉर्म भी यूज हो सकती है, बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। अभी हम बात करेंगे केवल इनका जो बेसिक यूज है जिनको हम कॉमनली यूज करते हैं। तो कॉमन यूज ऑफ दिस मॉडल ऑक्सिलरीज और कॉमन मॉडल ऑक्सिलरीज को हम आज यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज हमने डिस्कस की थी पास्ट ऑफ में। जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी नरेशन की बात करते हैं तो मे बिकम्स माइट, ये मे बिकम्स माइट, इसलिए मैंने कहा कि माइट डज द एक्शन ऑफ मे। ठीक है, ही सेड, उसने क्या कहा? आई मे विन दिस गेम। उसने कहा कि मैं ये गेम जीत सकता हूं, पॉसिबिलिटी बताई उसने, आई मे विन। मैंने इसको जब चेंज किया, मैंने किसी और को बताया उसके बारे में, तो मैंने कहा कि भाई उसने मुझे कहा ही सेड दैट, इसको कर देंगे ही, क्योंकि ही की बात हो रही है, तो हमारे सामने है ही नहीं अभी। उसने जब कहा था तब मैं उसके सामने था, तब उसने अपने आप को आई कहा, अब मैं इस आई को बदल के ही कर दूंगा, ही सेड दैट ही। अब ये मे जो है ये हो जाएगा माइट, ही सेड दैट ही माइट विन, और ये दिस का हो जाएगा दैट गेम। ही सेड दैट ही माइट विन दैट गेम। So this is very simple. May becomes might in indirect speech. किसी की कही हुई बात को जब दोबारा से हम कन्वे करते हैं और उसने may का यूज किया है तो हम उसको might में लेके चले जाते हैं। This is a rule of narration which you have already learnt. Shall becomes should, can becomes could, and may becomes might. So this was use of might. दूसरा देखते हैं. Let us move for the another. एंड दैट इज विल। विल की बात करते हैं भाई। विल कहाँ यूज करेंगे? विल हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए। कोई काम होगा फ्यूचर में होगा, सम एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। तो फ्यूचर की जब बात करेंगे तो हमारे पास विल है या फिर शैल है। एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, या तो विल यूज होगा या शैल होगा, इन्हीं से पता चलता है। These two are the indicators that we are talking about future. यूज सबसे पहले देखते हैं भाई, सब्जेक्ट होगा एंड देन विल होगा या शैल होगा, दोनों में से कोई एक तो होगा, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, अब ये विल शैल का चक्कर क्या है इसको देख लेते हैं पहले। जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, पर्सन्स की बात करते हैं, तो हम लिख लेते हैं ये सब्जेक्ट्स होते क्या हैं। ये होते हैं आई, ये होते हैं वी, यू, शी, ही, दे। तो ये आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, क्योंकि आई तो खुद बोलने वाला हो गया है एंड वी के अंदर आई शामिल होता है, तो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसमें ये अकेला है, ये प्लूरल है, तो ये फर्स्ट पर्सन है। आई और वी के साथ रूल सेज की हम यूज करेंगे शैल का यूज करेंगे, और बाकी सबके साथ में हम यूज करते हैं विल का व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश के अंदर टुडे इफ वी टॉक अबाउट वी यूज विद ऑल विल का यूज करते हैं सभी के साथ में। उसका रीजन है एक्चुअली, जो रूल ये कहता है कि आई और विल के साथ शैल का यूज करो, वहीं पे देयर इज अनदर रूल, वो ये कहता है
कि व्हेन यू टॉक अबाउट आई और वी, व्हेन यू आर श्योर, व्हेन यू आर डेफिनेट, तो विल शैल का विल का यूज करो। यानी अगर मैं किसी को ये कोई मुझे इनवाइट करने के लिए आ जाए और मैं ये कहूं कि भाई मैं आपकी शादी में आऊंगा, तो आई शैल कह दूंगा तो शायद उसमें डाउट हो सकता है, इसलिए विल कहूं। तो आमतौर पे अब हम सब क्या करते हैं, आई और विल के साथ विल का ही यूज करते हैं। इसी मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर आज हम विल का ही ज्यादातर यूज करते हैं, बट द ग्रामर रूल सेज कि आई और विल के साथ हम शैल का यूज करें। दैट इज द गेम ऑफ विल एंड शैल, बट वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड विल शैल एंड देन फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होगा इसका। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। मैं ये कहता हूं कि मैं मार्केट जाऊंगा, तो क्या कहूंगा, सिंपली आई, है ना, शैल गो टू मार्केट, हो गया, यूज हो गया। विल शैल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, है ना, नहीं जाऊंगा भाई, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। आपने विल यूज कर दिया तो गलत नहीं किया है, आई विल गो टू मार्केट। मैं आपकी मदद करूंगा तो क्या कहूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा मतलब कोई डाउट नहीं है, आई विल पास। वो पास हो जाएगा, ही विल पास। हम पास हो जाएंगे, वी विल पास। वो पास हो जाएंगे, दे विल पास। सो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब होती है, मॉडल वर्ब जो होती है, उसको यूज करो, फर्स्ट फॉर्म का यूज करो। बस याद ये रखना है कि शुड किसके लिए यूज होगा, सलाह के लिए यूज होगा। कैन किसके लिए यूज होगा, एबिलिटी के लिए यूज होगा। कुड एबिलिटी, परमिशन, मे परमिशन, विश पॉसिबिलिटी, माइट को भी हम परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे मे को यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है, होता ही नहीं एक्चुअली, बुक्स में ही हमें मिलता है, कहीं कहीं होता होगा एक्चुअली। पॉसिबिलिटी के लिए विल एंड शैल फॉर फ्यूचर एक्चुअली, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया या शैल, दोनों में से कोई एक, एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव बना लेते हैं इसका, तो वो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट कोई ना कोई पर्सन जरूर होगा जो काम करेगा, एंड देन विल या शैल जो दोनों में से है, एंड देन नॉट, एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। बड़ा सिंपल सा है, नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म। भाई मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि आई विल नॉट गो टू स्कूल। मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। इसका हम इंटरोगेटिव बना देते हैं, क्वेश्चंस में करेंगे तो दिस पार्ट विल बी इन द बिगिनिंग विल एंड shall and then subject and then verb first form। ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया है। क्या आप मेरी मदद करोगे, will you help me। क्या आप जाओगे, will you go, will subject and first form। क्या आप पढ़ोगे, will you study। क्या आप इंग्लिश सीखोगे, will you learn English। So this is a very simple use of will and shall actually, which we have already done। Now let us talk about would। ये would क्या है भाई, सबसे पहले फिर से वही बात आएगी, पास्ट ऑफ will। जो काम will का होता है वही काम would का होता है, लेकिन कब, पास्ट में। आपको पता है पास्ट में भी फ्यूचर हो सकता है, सोचा कभी पास्ट में भी फ्यूचर हो सकता है ना। जब मैं 5वीं क्लास में था, मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ये पास्ट में फ्यूचर है, और मैं डॉक्टर बनूंगा, ये फ्यूचर है। दोनों में अलग अलग है। ये विल किसके लिए यूज होगा, ये विल यूज होगा फ्यूचर, यानी अब से, नाउ, अब से आगे जो फ्यूचर है उसके लिए विल यूज होगा। पास्ट में जो फ्यूचर था उसके लिए वुड यूज होगा। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैंने कहा था कि मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा आई सेड, ये तो पास्ट हो गया ना, दैट आई। अब यार विल कैसे लिखूं भाई, मैं जो कॉपी चेक करता हूं बच्चों की तो एक कॉमन मिस्टेक मिलती है, दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज पास्ट ईयर, हाउ कैन देन इट बी फ्यूचर। ये पास्ट है तो ये फ्यूचर कैसे हो जाएगा भाई। ये विल तो अब से आगे है, प्रेजेंट से आगे है, तो यहां पे मैं इस विल को कन्वर्ट कर दूंगा पास्ट में और ये हो जाएगा
है ना, आई सेड दैट आई वुड गो, हो गया सेंटेंस आपका। यानी विल इज पास्ट ऑफ विल, वुड इज पास्ट ऑफ विल। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपने कहा था कि आप मेरी मदद करोगे, तो मैं कहता हूं यू सेड दैट यू। आपने कहा था, पास्ट, मेरी मदद करोगे, यानी पास्ट में फ्यूचर आ गया है यू, तो यहां हम यूज करेंगे वुड हेल्प मी। इट्स वेरी सिंपल। आप इसको समझ सकते हैं कि कितना सिंपल है इसको यूज कर पाना। वुड का एक और भी यूज है, वो क्या है, पास्ट हैबिट्स। अगर आपके पास की कुछ हैबिट्स हैं तो आप वुड का यूज करते हो। जैसे दादी जी कहानी सुनाती थी, सुनाया करती थी, मैंने कहा ग्रैंड मदर वुड टेल स्टोरीज। सुनाती थी। मैं काम करता था, आई वुड डू इट। पास्ट हैबिट्स के लिए, क्लियर। दादाजी जल्दी उठते थे, है ना, दादाजी जल्दी उठते थे। ग्रैंड फादर वुड गेट अप अर्ली। Grandfather would get up early. He would tell stories. So, would is used for past habits. ध्यान रखना है आपको। Would is used for past of will. Would is used for past habits. Would is used for polite request. Polite request. may यूज किया, can यूज किया, could यूज किया, would भी यूज कर लेते हैं। भाई मेरी मदद, would you please help me? लिख देते हैं, would you please help me? would you please close the door? बड़ा सिंपल सा तरीका है। would you like to have, है ना, ऑफर किया किसी को, हमने ऑफर किया भी चाय पियोगे, हमने कहा would you, ऐसा पोलाइट रिक्वेस्ट होगी एक तरीके से, would you like to have tea? You were taking tea. आपको लगा कि आप दूसरे को पिला देते हैं, आपका फ्रेंड आपके पास आ गया, तो आपने पूछा would you like to have tea? वो कहता yes, I would like to have tea. Would you please help me? Yes, I would. Would you go there? Yes, I would. So, students, the use of modal auxiliaries is very simple. बड़े सिंपल तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। ये जो जितनी भी हमने मॉडल ऑक्सिलरीज यूज की हैं, हमने शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड एंड एक और हमने शैल को डिस्कस किया। आपका काम ये रहेगा, यू विल मेक सेंटेंसेस। जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि शुड से मैंने सेंटेंस बनाया यू शुड विन द गेम, तो आप भी अपने आप सोचोगे एंड व्हेन यू मेक द सेंटेंसेस यू विल लर्न। सेंटेंस को देख लेने से, किताब को पढ़ लेने से, वीडियो को सुन लेने से, देख लेने से इंग्लिश नहीं आती। इनका यूज आप कर पाओगे जब आप इनको यूज करोगे। प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग विच कैन मेक यू कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, राइटिंग इंग्लिश, एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन अ बेटर वे। तो विद दीज वर्ड्स आई वाइंड अप टुडेज क्लास एंड आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा और आप जो है कोशिश करेंगे इसको और अच्छे से समझने की, पढ़ने की, प्रैक्टिस करने की। घर पे बैठ के सेंटेंसेस बनाते रहो, सोचते रहो, बोलते रहो एंड कीप राइटिंग, दैट इज द ओनली वे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।